السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں رضیہ کمل۔ کھیل اور کھلاڑی کی بات کرنے کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال۔ اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان اور متحدہ عرب کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی رحیم یار خان میں ملاقات، معاشی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم۔ وزیر اعظم کی پاکستان کی ترقی کے سفر میں یو اے ای کے اہم کردار کی تعریف، دونوں رہنماؤں کی اقتصادی تعاون، استحکام، موسمیاتی تبدیلی اور دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر گفتگو۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان معاشی استحکام کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی متحرک قیادت کے معترف۔ پاکستان کی نئی اقتصادی قوت نے سرمایہ کاری اور تعاون میں اضافے کے امکانات پیدا کر دیے۔ یو اے ای کے صدر کا کانکنی، معدنیات اور زراعت کے شعبوں میں گہری دلچسپی کا اظہار، دیرینہ شراکت داری کو بڑھانے کا اعادہ، ترجیحی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا گرم جوشی کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا ایک ہی گاڑی میں سفر۔ یو اے ای کے صدر نے گاڑی خود ڈرائیو کی۔ دوران سفر غیر رسمی گفتگو میں دونوں رہنما ہنستے مسکراتے نظر آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ 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 ہم پاکستانی ہیں۔ کشمیریوں سے کیا گیا وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ حق خود ارادیت سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد کو 76 برس بیت گئے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب کشمیری سراپا احتجاج، مظاہرے، ریلیاں اور سیمینارز کا انعقاد، جدوجہد آزادی کو منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل نہ ہونا، عالمی ادارے پر سوالیہ نشان۔ استصواب رائے ہی تنازع کشمیر کا واحد حل، حق خود ارادیت پر ہرگز سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ حریت قیادت کا اقوام متحدہ سے قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ حق خود ارادیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کا بنیادی اصول۔ کشمیری عوام 7 دہائیوں سے اپنا ناقابل تنسیق حق استعمال نہیں کر سکے۔ عالمی برادری اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے بامعنی اقدامات کرے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی اور کشمیری عوام کے بنیادی حقوق اور آزادیوں کو بحال کیا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا یوم حق خود ارادیت کے موقع پر پیغام۔ کشمیری عوام کا جذبہ ٹوٹ، جدوجہد آزادی کو طاقت کے زور پر دبایا نہیں جا سکتا۔ بھارت گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ عالمی برادری حق خود ارادیت دلانے کی ذمہ دار ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کی مکمل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ صدر آصف علی زرداری۔ کشمیری حق خود ارادیت کے لیے ثابت قدم، تحریک تکمیل پاکستان کے لیے پرعزم، تحریک آزادی کے بیس کیمپ کو مضبوط کرنا ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا ریلی سے خطاب۔ بھارتی مظالم کشمیریوں کے حوصلے کو شکست نہیں دے سکتے۔ کشمیری حق خود ارادیت کے حصول کے لیے بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں۔ بھارت کے غاصبانہ اور جابرانہ تسلط سے آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ اقوام متحدہ اور مہذب دنیا مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری۔
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 97वां यौम पैदाइश। इसाले सवाब के लिए दुआया तक़रीबात, सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जमहूरियत के दाई, आमिरियत और जबर के खिलाफ साबित कदम रहे। उनकी मीरास कौम के लिए मशअले राह है। मुल्क को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद रहनुमा को खराज अकीदत। तशद्दुद और नफरत की सियासत मुल्क की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट। इत्तेहाद और यकजहती से साजिशें नाकाम बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवामी फलाह के मंसूबे दिए। पीटीआई दौर में तरक्की का सफर रोककर मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया गया। मुल्क दुश्मन अनासिर से पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन मुल्की खुशहाली के लिए नागुज़ीर। दहशत गर्दी बड़ा चैलेंज। फितने के मुकम्मल खात्मे के लिए इज्तमाही कोशिशों की जरूरत है। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को तब्दीली के नाम पर धोखा दिया। नाकिस गवर्नेंस, बदउनवानी और पुरतशद्दुद सियासत इनका वतीरा है। बानी पीटीआई के मुकदमात का फैसला अदालतों ने करना है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम। पीटीआई का तहरीरी मुतालिबात पर बड़ा यू टर्न। मुज़ाकरात नाकामी के खतरात से दो चार। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर तहरीरी मुतालिबात देने की यकीन दहानी से पीछे हट गए। बयान से मुज़ाकरात में डेड ब्लॉक का खतरा। सियासी मुबस्सरीन ने बयान को नई शराइत से ताबीर कर दिया। मुतालिबात तहरीरी शक्ल में पेश ना किए तो मुज़ाकराती अमल में मुश्किल आ सकती है। तर्जमान हुकूमती कमेटी इरफान सिद्दीकी। गवादर इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों का मरकज। न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 जनवरी से बाकायदा फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज। हवाई अड्डे की तामीर सी पैक मंसूबों की कामयाबी से तकमील का मजहर। खुसूसी रिपोर्ट खबरनामे में शामिल। कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। इक़दाम कत्ल समेत दहशतगर्दी की दफात शामिल। 5 नामजद मुल्जिमान समेत 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा। अशफाक खान कुरम के नए डिप्टी कमिश्नर तैनात। भारत को एक और धचका। चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए। चीन का 2 नई काउंटियों के कयाम का ऐलान सरहदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के चंद दिन बाद किया गया। अमन बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों के लिए तैयार हैं चीनी दिफाई तर्जुमान। जंग बंदी मुज़ाकरात के बावजूद गजा पर इसराइली जारहियत। सिहूनी फोर्सेस की बमबारी से मजीद 88 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस और रफा के इलाकों पर भी शेलिंग। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज फौज की कार्रवाइयाँ। 20 से ज़ायद फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और चंद मकामात पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आइंदा 12 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। शिमाल मशरक़ी पंजाब और खित्ता पोठोहार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। केप टाउन में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट। तीसरे रोज का खेल मुकम्मल। पाकिस्तान का दूसरी इनिंग्स में महतात आगाज। 1 विकेट के नुकसान पर 213 रन बना लिए। 205 रन की रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप। कप्तान शान मसूद की सेंचुरी। 102 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 194 रन पर आउट होकर फॉलो ऑन हो गया था। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 615 रन बनाए थे। जनूबी अफ्रीका को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कमी नजर नहीं आई। ये अच्छा बॉल था लेकिन सियालकोट कायदे आजम ट्रॉफी का चैंपियन बन गया। फाइनल में पेशावर के खिलाफ 1 विकेट से कामयाबी। इमाद भट्ट मैच और नियाज खान टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। उनको इतना एतमाद है नहीं अपने तीसरे पेसर पर। एक हैंड को होल्ड करके रखना है और ये बार किया, ये बेहद जोर।
सिडनी में आखिरी टेस्ट, भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 6 विकेटों से शिकस्त। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 3-1 से कैंगरूज के नाम। ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में रसाई, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपने एजाज का दिफा करेगा। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप, पाकिस्तान के सुहेल अदनान अंडर 13 कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में मिस्र के आमिर मुस्तफा को शिकस्त दे दी। फाइनल में मुकाबला मिस्र के मुइज तामिरुल मुगाजी से होगा। और इंग्लिश प्रीमियर लीग, मैनचेस्टर सिटी की वेस्ट हैम यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। आर्सेनल और ब्राइटन एंड हाउ अल्बियन के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Got support from Rice as well. Might not need him. Nwaneri! Well, this kid is quite something. हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। अब्बू, हम सोलर क्यों नहीं लगवा लेते? जाकर अपनी अम्मा का हाथ पटाइए। अम्मा, आप आंटी सलमा की तरह अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर लेती? आप बस मुझे अगले महीने तक का वक्त दे दें, मैं आपको पूरा किराया दे दूंगी। आंटी, आप अपना घर क्यों नहीं ले लेती? ये आजकल कुछ ज्यादा सवाल नहीं करने लग गई। बच्चे के सवालों से मत घबराएं, अब सब मुमकिन है। अगर आप भी इनकी तरह वजीर आला पंजाब की जानिब से बनाए गए फलाही मंसूबों से मुस्तफीद होने के अहल बनना चाहते हैं तो अभी अपने करीबी PSER रजिस्ट्रेशन सेंटर में तशरीफ लाएं या फिर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खुद को PSER सर्वे में रजिस्टर करवाएं। सिर्फ PSER सर्वे में रजिस्टर्ड अफराद ही मेरिट पर इन सहूलियात से फायदा उठाने के अहल हो सकते हैं। राब्ता करें 0800 02345। अब होगा सबका शुमार। PSER। सर्दियों के 4 महीने यानी नवंबर तक फरवरी 0.9 HM³ से कम गैस इस्तेमाल करते हैं तो पूरा साल प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहेंगे। मुजरे सेहत गैस हीटर की बजाय गर्म कपड़े इस्तेमाल करें तो समझदारी दिखाइए, गैस बचाइए और बचत पाइए। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के दरमियान रहीम यार खान में मुलाकात हुई। माशी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का अज़्म। वजीर आजम ने पाकिस्तान की तरक्की के सफर में UAE के अहम किरदार की तारीफ की। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर फारूक। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रहीम यार खान पहुंचे तो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी सैयद तारिक फातमी भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने एक ही गाड़ी में सफर किया। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने गाड़ी खुद ड्राइव की, जबकि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ उनके हमरा थे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गाड़ी में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। इस दौरान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ जो दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान रहीम यार खान में मुलाकात हुई। मुलाकात में इक्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार किया गया। इस मौका पर इक्तिसादी ताउन, इलाकाई इस्तेकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बामी मफादात के फरोग समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत
मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के सफर में मुत्तहिदा अरब अमारात के अहम किरदार की तारीफ की। उन्होंने काबिल तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे की तामीर और तजदीद, नौजवानों की सलाहियतों में इजाफे, पेशा वराना तरबियत के फ़रोग और तिजारत जैसे अहम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर जोर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुतहर्रिक क़ियादत की तारीफ करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इस नई इक़्तिसादी कुव्वत ने दो तरफ़ा सरमायाकारी और ताउन में इजाफे के इम्कानात पैदा किए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ कानकनी, मादनियात और ज़राअत जैसे शोबों में ताउन के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की गहरी दिलचस्पी को भी उजागर किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने पाकिस्तान के साथ अपनी दरीना शराकतदारी बढ़ाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के अज़्म का इयादा करते हुए अवामी रवाबत के फ़रोग और मुश्तरका खुशहाली की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में खास तौर पर इक़्तिसादी ताउन के ज़िम्न में गैर मुतज़लज़िल हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात की क़ियादत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और तरक्की के लिए अपने अज़्म का इयादा करते हुए बामी दिलचस्पी के उमूर पर मिलकर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने दोनों ममालिक के रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए तरजीही शोबों में वसी तर ताउन को फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़्म का भी इयादा किया। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने आज यौम हक़ खुद इरादियत इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया कि वो आलमी सतह पर तस्लीम शुदा नाकाबिल तनसीख हक़ के हुसूल तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। 5 जनवरी 1949 को सलामती काउंसिल ने एक करारदाद मंजूर की थी जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे निगरानी इस्तिस्वाब राय के तहत कश्मीरियों को अपने मुस्तक़बिल का खुद फैसला करने के हक़ की हिमायत की गई थी। हर साल इस दिन को मनाने का मकसद आलमी बिरादरी को ये याद दिलाना है कि वो कश्मीर के बारे में अपनी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कश्मीरियों की भारत की नाइंसाफ़ियों के खिलाफ खुद को मुनज़्ज़म करने की कोशिशों को भारत वहशियाना रियासती दहशतगर्दी के जरिए दबा रहा है। हिंदुस्तानी फोर्सेज ने डिस्टर्ब एरियाज एक्ट, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे मुख्तलिफ क़वानीन को राइज कर रखा है ताकि किसी भी फ़र्द को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गिरफ्तार किया जा सके और मावराए अदालत कत्ल किया जा सके। मकबूजा कश्मीर में लोगों को उनके बुनियादी हकूक बशमूल जान, माल, सेहत, इजहार राय की आज़ादी और असम्बली के हकूक से महरूम कर दिया गया है। 5 अगस्त 2019 के बाद से मुसलसल गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात के जरिए मोदी की हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में खौफ और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रखा है। हक़ खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत एक बुनियादी हक़ है जिसकी नफ़ी इस आलमी एलामिया और उसके मुआहिदों की नफ़ी है। आलमी बिरादरी की कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम से किए गए वादों को पूरा करे। भारतीय इक़दामात को आलमी बिरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों ने बड़े पैमाने पर मुस्तरद किया है। 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दामात और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हालिया फैसला अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के तहत इस मुतनाज़ा इलाके को नौआबादियात बनाने की कोशिश है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक मकबूजा कश्मीर के अवाम की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने हाल ही में अवाम के हक़ खुद इरादियत के आलमी एहसास पर पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम एक करारदाद मंजूर की है जिसकी बड़ी तादाद में ममालिक ने हिमायत की है। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़र्ज़ है कि वो कश्मीरी अवाम से किए गए अपने वादों की तकमील को यकीनी बनाए और कश्मीरी अवाम को आज़ादाना और मुनसिफाना रायशुमारी के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल का तयन करने का मौका दे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि 1949 में आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए भारत और पाकिस्तान ने एक तारीखी करारदाद मंजूर की थी जिसमें जम्मू कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय की ज़मानत दी गई थी ताकि कश्मीरी अवाम को उनका नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत दिया जा सके। वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों के यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि हक़ खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़ानून का बुनियादी उसूल है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली हर साल एक करारदाद मंजूर करती है जो लोगों को अपनी तकदीर खुद तय करने के कानूनी हक़ की वकालत करती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये अमर इंतहाई काबिल अफसोस है कि कश्मीरी अवाम गुज़श्ता 7 दहाइयों से इस नाकाबिल तनसीख हक़ को इस्तेमाल नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और आज़ादी की जायज़ जद्दोजहद को कुचलते हुए कश्मीरी अवाम को बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों का निशाना बना रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए उनकी अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा।
सदर आसिफ अली जरदारी ने कश्मीरियों के यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए भारत और पाकिस्तान की जानिब से मंजूर करदा करारदाद की आज 76वीं सालगिरह मना रहे हैं। सदर ममलकत ने कहा कि करारदाद में तनाज़ा जम्मू कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी जमहूरी अंदाज से आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय के ज़रिए हल करने का फैसला किया गया था। उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि भारत ने गुज़श्ता 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को उनके नाकाबिल तनसीह हक़ से महरूम रखा हुआ है। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतालिका करारदादों के मुताबिक बहादुर कश्मीरी अवाम के मनसिफाना जिद्दोजहद और हक़ खुद इरादियत के हुसूल में उनकी मुकम्मल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में जलसे, जुलूसों और एहतजाजी मुज़ाहिरों और रैलियों का इन्नेकाद किया गया। मुज़फ़्फ़राबाद से हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा कीजिए। यौम हक़ खुद इरादियत के सिलसिले में बुरहानवानी चौक मुज़फ़्फ़राबाद में मुनक़दा मरकज़ी तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक़ ने कहा कि कश्मीरियों को अपने ज़ोर बाजू पर कश्मीर की आज़ादी हासिल करने के लिए खड़ा होना होगा। एक बात दो टोक अंदाज में मैं पूरी दुनिया के सामने रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ। तक़सीम कश्मीर का कोई फलसफा किसी कश्मीरी को काबिल कबूल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी जुज की बुनियाद पर नहीं, कुल की बुनियाद पर अपना हक़ खुद इरादियत का हक लेके तहरीक तकमील पाकिस्तान की मंजिल हासिल करेंगे। इस मौके पर खिताब के दौरान कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हर सतह पे सियासी, अखलाकी, सफारती, अस्करी, रिलीफ कोई भी महाज हो, हर महाज पे हम दुश्मन के खिलाफ चुमुखील जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। तकरीब से स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने भी खिताब किया और अक़वाम मुत्तहिदा से मसला कश्मीर पर इसकी करारदादों पर अमल दरामद के वादे को पूरा करने का मुतालबा किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में भी यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर इस अज़्म का इजहार किया गया कि कश्मीरी अपने पैदाइशी और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक जदोजहद आज़ादी जारी और सारी रखेंगे। यौम हक़ खुद इरादियत के सिलसिले में मुज़फ़्फ़राबाद के बुरहानवानी चौक से कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी की क़यादत में निकाली गई मरकजी रैली में आज़ाद कश्मीर काबीना के अरकान और मेंबरान असम्बली समेत कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और महाजरीन जम्मू कश्मीर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड थाम रखे थे जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा से हक़ खुद इरादियत के वादों की तकमील के मुतालबात दर्ज थे। शुरका ने भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक़ में भरपूर नारेबाजी की। रैली के शुरका ने बुरहानवानी चौक से मुज़फ़्फ़राबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन के दफ्तर तक मार्च किया और मुबस्सर मिशन को याददाश्त पेश की। मीरपुर, कोटली, भिम्बर और बाग समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में यौम हक़ खुद इरादियत के सिलसिले में एहतजाजी रैलियों और जलसे जुलूसों का इनेकाद किया गया और आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा दोहराया गया कि वो खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मसला कश्मीर के हल के लिए संजीदा कोशिशें करें। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर इस्लामाबाद में तकारीब का इनेकाद किया गया। तफसील बता रहे हैं नईमुल असद। यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर कश्मीर लिबरेशन सेल और वॉइसेस ऑफ जस्टिस फॉर कश्मीर के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में सेमिनार हुआ। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने सेमिनार से खिताब में कहा कि कश्मीरी अवाम 7 दहाइयों से अपने हक़ खुद इरादियत के हुसूल और आज़ादी की तहरीक के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये मायदा था कि कश्मीरियों को रायशुमारी का हक दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैं तमाम कश्मीरियों की तरफ से ये वाज़ा करना चाहता हूँ कि तक़सीम कश्मीर हमें काबिल कबूल किसी सूरत नहीं है। दूसरे मुकर्री ने कहा कि हम मकबूजा कश्मीर के अवाम को यकीन दिलाते हैं कि आज़ादी की तहरीक में हम उनके शाना बशाना है और हमारी ये जदोजहद मकबूजा कश्मीर की भारत के गासिबाना और जाबराना तसल्लुत से आज़ादी तक जारी रहेगी। यौम हक़ खुद इरादियत के सिलसिले में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख के ज़ेर एहतमाम भी इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर और सफारतकार मसूद अहमद खान ने कहा कि 5 जनवरी 1949 की करारदाद कश्मीर की जदोजहद आज़ादी को बुनियाद फराहम करती है, जिसमें कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम किया गया है।
साबिक सफीर सोहेल महमूद, तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्ला फराग, साबिक हुर्रियत कन्वीनर मोहम्मद फारूक रहमानी और दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाने के बावजूद भारत कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को दबाने में नाकाम रहा है। उन्होंने भारत पर जोर दिया कि वो जमीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करते हुए मसले कश्मीर के पुरअमन हल के लिए साजगार माहौल पैदा करे। नईमुल असद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 97वीं सालगिरह के मौके पर देखते हैं कराची से ज़मीर अब्बास की रिपोर्ट। किसी ने सोचा न था कि 5 जनवरी 1928 को सिंध के शहर लाड़काना के एक छोटे से गांव रतो-देरो में शाहनवाज भुट्टो के घर आंख खोलने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुस्तकबिल में आलमी लीडर की हैसियत से जाने जाएंगे। अमेरिका और बरतानिया में आला तालीम के हसूल के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान आकर सियासत में कदम रखा। वो पाकिस्तान के 8वें वज़ीर ख़ारजा बने और अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकारीर के लिए बहुत मकबूल हुए। Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression, legalize occupation, legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? उन्नीस सौ 1967 में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद डाली। पुरवकार और पुरकशिश शख्सियत के मालिक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान के नारे से अवामी सियासत में कदम रखा। अपने दौरे इक़्तिदार में उन्होंने मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए कई काम किए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए अवाम को उनके वोट की ताकत समझाई, जिसकी वजह से इन्हें कायदे अवाम भी कहा जाता है। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुल्क को मुतफ़क़ा आइन, एटमी प्रोग्राम, अवाम को सियासी शऊर और आलमी सतह पर खुद को मुदब्बर मनवाने वाली अहद साज शख्सियत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक आलम को अपना असीर किया। उन्होंने हर फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी का हक अदा और कौमी वक़ार को उजागर किया। रिपोर्ट तैयार की है सुहेल जमाली ने। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पर चमकने वाला वो महर आलमताब है जिसकी ज़ौफ़शानियों से काफ़िला जमहूरियत को मंजिल, महरूम तबक़ात को उम्मीद की किरण और आलम इस्लाम के इत्तेहाद को वलवला ताज़ा मिला। 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा होने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बम्बई, कैलिफोर्निया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की। कराची में वकालत और तदरीस के पेशे से वाबस्ता हुए। वो 1958 में अयूब खान की काबीना में शमूलियत के बाद 1963 में वज़ीर ख़ारजा के मनसब पर फायज हुए और पाकिस्तान आलमी ताल्लुकात के एक नए दौर में दाखिल हुआ। 1965 की पाक भारत जंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में रखने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान ताशकंद पर सदर अयूब खान के दस्तखत के बाद एहतिजाजन हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की और अगले बरस 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। उनकी करिश्माती शख्सियत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुल्क की मकबूल तरीन जमात बनाया और 1970 के पहले आम इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान से अक्सरियत हासिल की। 1972 में वो सदर मुमलिकत के मनसब पर फाइज हुए और बाद में मुंतखब वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेदार मस्त क़यादत में 1974 में दूसरी इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। ये कॉन्फ्रेंस इस्लामी ममालिक के लिए इत्तेहाद और रोशनी का मीनार साबित हुई। 1977 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्कगीर कामयाबी हासिल की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो पहले सियासतदान थे जिन्होंने वज़ारत उज़्मा का मनसब दूसरी बार संभाला। वो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के मेमार थे। उनकी सियासी क़यादत में जहाँ मुल्क को पहला मुत्तफ़क़ा आइन मिला, वहीं कादियानी गैर मुस्लिम करार पाए। शनाख्ती कार्ड का इजरा, मुल्क और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को रोजगार की फराहमी, सनतों को कौमियाना, मसला कश्मीर को उजागर करना, शिमला मुआहिदा, चीन से करीबी ताल्लुकात और अवाम को सियासी शऊर देना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रोशन कारनामे हैं। 5 जुलाई 1977 को उनकी मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और 4 अप्रैल 1979 को एक मुतनाज़े मुकदमे में उनको फांसी दी गई। पाकिस्तानी सियासत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के असरात हमेशा महसूस किए जाते रहेंगे। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेमिसाल जहानत, हौसले और करिश्माती शख्सियत के हामिल सियासतदान थे और उनकी मिरास कौम के लिए मशअल राह है। उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को 1973 में पहला मुत्तफ़क़ा आइन दिया और वफाकी पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मामार थे जो हमारी खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी हैसियत का हामिल है। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमें उनके मिशन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनकी सालगिरह के मौके पर शानदार खराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने एक पैगाम में कहा कि वो एक दूरंदेश रहनुमा थे जिनकी मीरास आज भी पाकिस्तान को एक मजबूत और मुसावी माशरे की तामीर की राह दिखा रही है। उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जदीद पाकिस्तान के माहमार और एक मुदब्बिर रहनुमा थे। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 जनवरी से बाकायदा फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज हो जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर सीपैक मंसूबों की कामयाबी से तकमील का सबूत है। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार अहमद। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ओमान मस्कत फ्लाइट सर्विस 10 जनवरी को शुरू हो जाएगी। पोर्ट सिटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन के ताउन से 55 अरब से तामीर किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब के हमरा न्यू गवादर हवाई अड्डे का वर्चुअल इफ्तिताह अक्टूबर 2024 में किया। 4300 एकड़ रकबे पर न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूदा हवाई अड्डे से 26 किलोमीटर फासले पर गोरंदानी के इलाके में कायम किया गया है। एयरपोर्ट का रनवे 3658 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। गवादर एयरपोर्ट A380 और बोइंग 747 जैसे बड़े तैयारों को हैंडल कर सकता है। जदीद एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, क्रैश लैंडिंग या आतिशज़दगी की सूरत में क्विक रिस्पांस सर्विस समेत एक हवाई अड्डे के लिए लाजमी तमाम सहूलतें न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद होंगी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक मसरूफ ट्रांजिट पॉइंट बनाने के लिए काबिल अमल प्लानिंग की जा रही है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एरोड्रोम सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है। एरोड्रोम सर्टिफिकेट का मतलब टेक ऑफ, लैंडिंग, रनवे, एप्रन और टैक्सी वेज यानी फ्लाइट ऑपरेशन के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हवाई अड्डे से अंदाजन 40 लाख मुसाफिर सालाना सफर कर सकेंगे। ASF, ANF और एयरपोर्ट अथॉरिटी की तैनाती का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। एयरपोर्ट पर बैंक्स और ATM मशीन्स, वेयर हाउसेज, कोरियर सर्विसेज, कार्गो शेड्स, टेक्निकल ग्राउंड सपोर्ट आलात, कोल्ड स्टोरेज, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स के लिए भी जगह मखसूस की गई है। डीप सी पोर्ट के साथ न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वस्ती एशिया और मशरिक वुस्ता से राब्ते मजीद आसान हो जाएंगे। ये है बलूचिस्तान में तरक्की का सफर। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पुरतशद्दुद और नफरत की सियासत मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि PTI दौरे हुकूमत में तरक्की का सफर रोककर मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया गया। तफसील बता रहे हैं हसन रियाज। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने नारोवाल में रेलवे स्टेशन से सियालकोट फाटक तक 1.54 किलोमीटर राब्ता सड़क का संगे बुनियाद रखा। मनसूबा 20 करोड़ रुपए की लागत से 5 माह में मुकम्मल होगा। मनसूबे से सिख यात्रियों को करतारपुर जाने में आसानी होगी। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवामी तरक्की के मनसूबे दिए। PTI ने अपने दौर में अवामी मनसूबे बंद करके मुल्क को महंगाई और बदहाली का शिकार कर दिया। पिछली हुकूमत के दौर में जो तब्दीली सरकार थी उसने बंद कर दिया था, और मैं समझता हूं कि वो हुकूमत जो पाकिस्तान पे एक स्याह दौर छोड़कर गई, पाकिस्तान को अंधेरों में फेंक गई, आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दोबारा आने के बाद वो अंधेरे छट रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि PTI की आदत संगीन जराइम में मुलविस है, जिसमें कौमी सलामती के इदारों को बदनाम करना भी शामिल है। आपस में लोगों को लड़ाया जाए, लोगों को उस मुल्क की फौज के साथ लड़ाया जाए, और यूं वो मुल्क अंदर से खोखला हो जाता है। एहसन इकबाल ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान मंसूबा 2029 तक पाकिस्तान को तेज तरीन तरक्की करती मईशतों में शामिल करेगा। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अमन से मुल्क का अमन जुड़ा है। सूबे के अवाम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। मालम जब्बा में तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर ने कहा कि सूबाई हुकूमत को सूबे के मसाइल पर तवज्जो देना चाहिए। तफसील अनीस अवान से। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। तहरीक इंसाफ ने अवाम को गुमराह करके सूबे की तरक्की का रास्ता रोका। बदकिस्मती से तीसरी दफा जो लोग यहाँ पर मुसल्लत है, उनके एजेंडे में ना अवाम की बेहतरी है, ना अवाम की जिंदगी में आसानियाँ लानी है, न पाकिस्तान को मजबूत कराना है, न KPK को मजबूत कराना है। वो एक काम पर यूज कर रहा है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करे, मरकज पर चढ़ाई करे,
چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک دشمن عناصر پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے. پی ٹی آئی نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. یہاں کا نوجوان اب یہ کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا. کے پی کے دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے. آج کے پی کے کی یونیورسٹیوں کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. آج یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں. آج اسلام آباد کی چڑھائی کے شوق میں جو کرم کے اندر جو کچھ ہوا اور جس طرح یہاں پر امن و امان کے حالات ہوئے، اب یہاں کے لوگ سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کو مختلف مواقع فراہم کر رہے ہیں. اڑان پاکستان پروگرام ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا. انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا اور استحکام کی جانب گامزن کیا. مرید کے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ مخالفین کے منہ سے معاشی بہتری کا اعتراف ہمارے بیانیے کی سچائی کا اہم ثبوت ہے. انہوں نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے کاروبار ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کے لیے بھی انقلابی پروگرام لا رہے ہیں. رانا تنویر حسین نے کہا کہ انتشاری ٹولہ دہشت گردی چھوڑ کر ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کرے. میں سمجھتا ہوں کہ این آر او کی تو بھیک مانگ رہے ہیں. کبھی پاؤں پکڑتے ہیں، کبھی منتیں کرتے ہیں، کبھی بالکل سر کو بھی آتے ہیں. جب بات نہیں بنتی تو پھر دوسرے بیان دے دیتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح معاملات آگے بڑھیں گے. ان کے اگر انہوں نے کوئی بہتری لانی ہے تو وہ سیاسی مثبت سیاست ہے وہ کریں اور مین سٹریم میں آئیں اور دہشت گردی کو چھوڑیں. رہنما مسلم لیگ نون ارباب خضر حیات نے کہا ہے کہ ضلع کرم میں خراب حالات کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے. کرم میں حالات کنٹرول کرنا بیرسٹر سیف کے بس کی بات نہیں ہے. تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں اور کرم کے مشران پر مشتمل جرگہ کے ذریعے معاملے کو حل کیا جا سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ لیمین گنڈاپور چیف ایگزیکٹو کے عہدے پر رہنے کے قابل نہیں. خیبر پختونخوا میں امن لانے اور حکومت کو صحیح سمت پر لے جانے کے لیے گورنر راج کا آپشن موجود ہے. پی ٹی آئی کا تحریری مطالبات پر بڑا یو ٹرن، مذاکرات ناکامی کے خطرات سے دوچار ہو گئے. پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اور مذاکراتی کمیٹی کے رکن اسد قیصر تحریری مطالبات دینے کی یقین دہانی سے پیچھے ہٹ گئے. نجی ٹی وی کو انٹرویو میں پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ہم نے جو باتیں مذاکرات کے دوران کہی ہیں وہ منٹس بن چکی ہیں، انہیں ہی تحریری مطالبات سمجھا جائے. کاغذ دینا نہ دینا فارمیلٹی ہے. حکومتی کمیٹی اصل فیصلہ سازوں اور سٹیک ہولڈرز کو بھی آن بورڈ لے. اسد قیصر کے بیان نے مذاکرات کے عمل پر سوال کھڑا کر دیا اور نئی شرائط نے مذاکراتی کمیٹی کے اگلے اجلاس کو غیر یقینی بنا دیا ہے. سیاسی مبصرین نے اسد قیصر کے بیان کو نئی شرائط سے تعبیر کیا ہے. سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ دونوں مشترکہ اعلامیوں میں پی ٹی آئی لیڈرز نے تحریری مطالبات حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو دینے کا وعدہ کیا تھا. مبصرین کے مطابق اسد قیصر نے یہ بھی کہا کہ بانی کے علاوہ جیل میں قید دیگر پی ٹی آئی لیڈرز سے بھی ان کی ملاقاتیں کرائی جائیں. اسد قیصر نے یہ بھی کہا کہ ہماری کمیٹی صرف سہولت کاری اور رابطے کا کام کر رہی ہے. اصل فیصلے بانی نے ہی کرنے ہیں، اسی لیے ہمیں بانی اور دوسرے لیڈروں سے مسلسل ملاقاتوں کا موقع فراہم کیا جائے. ایسا نہیں ہوتا تو ہم اس عمل میں شریک نہیں رہیں گے. مبصرین کا کہنا ہے کہ اسد قیصر کے بیان سے مذاکرات میں ڈیڈ لاک کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور آئندہ اجلاس کا انعقاد غیر یقینی کا شکار ہو گیا ہے. مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر وعدے کے مطابق پی ٹی آئی اپنے مطالبات تحریری شکل میں پیش نہیں کرتی تو مذاکراتی عمل میں مشکل پیش آ سکتی ہے. ضلع کرم میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. ضلع بھر میں 5 افراد سے زیادہ کے اجتماعات اور اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی ہوگی. گزشتہ روز لوئر کرم کے علاقے بگن میں فائرنگ کے واقعے میں ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے تھے. واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب 80 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان کا قافلہ بگن کے راستے پاڑا چنار پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی. دہشت گردوں کی فائرنگ کی وجہ سے قافلے کو واپس کرنا پڑا. واقعے کے بعد اشفاق خان کو کرم کا نیا ڈپٹی کمشنر تعینات کر دیا ہے. انتظامیہ کے مطابق قافلہ جلد دوبارہ روانہ کیا جائے گا. کرم فائرنگ واقعے کی رپورٹ سٹی تھانے میں درج کر دی گئی ہے. ایف آئی آر ایڈیشنل ایس ایچ او سید اظہار حسین کی مدعیت میں درج کی گئی ہے جس میں اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں. ایف آئی آر میں 30 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. جنگ بندی مذاکرات کے باوجود غزہ پر اسرائیلی جارحیت جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت مزید 88 فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے. الجزیرہ کے مطابق صہیونی فورسز نے غزہ پر گزشتہ 3 دنوں میں 100 فضائی حملے کیے جس میں 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے. شمالی غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 14 فلسطینی شہید ہو گئے. خان یونس پر اسرائیل کے تازہ حملے میں 1 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہوئے ہیں.
मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयों के दौरान इसराइली फौज की फायरिंग से 5 फलस्तीनी जख्मी हो गए। घर घर तलाशी की कार्रवाई के दौरान नाबलूस में इसराइली फौज की फायरिंग से 4 जबकि बैतुल्लाहिया में 1 शख्स जख्मी हुआ। जख्मियों को करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फलस्तीनी पनाह गुज़ीरों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA ने खबरदार किया है कि इसराइली पाबंदी के फैसले से इसकी कार्रवाइयाँ मफलूज हो सकती हैं। UNRWA की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इदारे पर मुमकिन पाबंदी का वक्त करीब आ रहा है, जिससे लाखों फलस्तीनी पनाह गुज़ीरों को खिदमात फराहम करने का अमल मुनक़ते हो सकता है। बयान में मज़ीद कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा इदारे को तब्दील करने का इरादा नहीं रखता। इसराइल पाबंदी लगाने के अपने फैसले को वापस ले। अक़वाम मुत्तहिदा ने UNRWA पर मुमकिन पाबंदी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसराइली हुकूमत से मुतालिबा किया कि वह UNRWA को अपना काम जारी रखने की इजाज़त दे और बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत इसराइल ज़िम्मेदारियों का एहतराम करे। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी और कैदियों के तबादले पर मुज़ाकरात की बहाली के साथ ही अमरीकी इंतज़ामिया ने गज़ा के लिए मुस्तक़बिल के प्लान का ऐलान कर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि हमने कई शराकतदारों के साथ गज़ा जंगबंदी के बाद मुस्तक़बिल के मंसूबे पर काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने खित्ते के बहुत से ममालिक, ख़ास तौर पर अरब शराकतदारों के साथ जंग के बाद के मंसूबे पर काम करने में तवील वक्त गुजारा है, इसलिए हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। हिज़्बुल्लाह के सरबराह ने खबरदार किया है कि इसराइल लबनान के साथ जंगबंदी के मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल हमलों से बाज ना आया तो इसके खिलाफ भरपूर जवाबी हमले किए जाएंगे। उधर शाम के वज़ीर ख़ारिजा असद अल शिबानी की सरबराही में वफ़द ने दोहा का दौरा किया। अल अरबिया के मुताबिक शाम के वज़ीर ख़ारिजा असद अल शिबानी ने कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात की। मुलाकात में शाम की मौजूदा सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात, शाम पर आयद अमरीकी पाबंदियों समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद शाम के वज़ीर ख़ारिजा असद अल शिबानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीकी पाबंदियाँ शाम की तरक्की की राह में एक रुकावट है। उन्होंने अमरीका से शाम पर आयद पाबंदियाँ हटाने के लिए मुतालबा किया। वज़ीर ख़ारिजा असद अल शिबानी ने मज़ीद कहा कि मुल्क इस्तेहकाम, सलामती, इक़्तिसादी बहाली के लिए बहुत जल्द मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन का भी दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा के साथ वफ़द में शाम के वज़ीर दिफ़ा मरहफ अबू कसरा और इंटेलिजेंस चीफ अनस खिताब भी हमरा हैं। चीन ने खतन प्रीफेक्चर में लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके 2 नई काउंटीज के क़याम का ऐलान कर दिया है। इस पेशरफ पर मोदी हुकूमत सीखपा हो गई है और भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने बीजिंग के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है और ये पहला मौका है जब भारत और चीन ने हिमालयाती सरहदी तनाज़े पर खुले तौर पर एतराज़ किया है। चीन की जानिब से ये ऐलान 5 साल बाद सरहदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के चंद दिन बाद किया गया। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल ने गुज़श्ता माह बीजिंग का दौरा करके सरहदी इलाकों पर मुज़ाकरात भी किए थे। दिसंबर 2024 में चीनी दिफाई तर्जुमान ने कहा था कि सरहदी इलाकों में अमन बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों के लिए तैयार हैं। चीनी खबरसां इदारे शिन्हुआ के मुताबिक हियान काउंटी और हेंगकांग काउंटी का क़याम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और रियासती काउंसिल की मंजूरी के बाद किया गया है। 2020 में लद्दाख की सरहदी कशीदगी के दौरान दोनों ममालिक की फ़ौजों के दरमियान झड़पों में कई भारतीय फ़ौजी हलाक हुए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक चीन कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाता जिसमें उसे कोई शक व शुबा हो, लिहाजा अब भारत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े पर नई पेशरफ्त खित्ते में मज़ीद कशीदगी का बायस बन सकती है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का अयादा किया है कि जब तक तनाज़ा कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं किया जाता, कश्मीरी हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रखेंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में मकबूजा जम्मू कश्मीर में जद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए भारत के ज़ालिमाना हथकंडों की मज़म्मत की है। उन्होंने खबरदार किया है कि भारत के गैर कानूनी और ज़ालिमाना इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं जो आलमी तसादुम का बायस बन सकते हैं। तर्जुमान ने आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वह कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाए। कश्मीर के हवाले से भारतीय पॉलिसियों के खिलाफ कुपवाड़ा और जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कुपवाड़ा के रिहायशियों ने भारतीय हुकाम की बेहिसी को उजागर करते हुए बुनियादी सहूलियात की बहाली का मुतालबा किया। जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे के शुरका ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत और ज़मीनों में मुलाजमतों के हकूक़ की बहाली का मुतालबा किया। दूसरी जानिब अमरीका में एक तकरीब के दौरान डॉक्टर इम्तियाज़ खान, डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाये और डॉक्टर GN मीर समेत मुमताज़ दानिश्वरों ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी राय शुमारी ही तनाज़ा कश्मीर का वाहिद हल है। उन्होंने कश्मीरों पर जारी मज़ालिम के खात्मे इलाके में अमन को यकीनी बनाने के लिए फौरी बैनुल अक़वामी मुदाखलत का मुतालबा किया। मीरपुर माथिलो हयात पताफी में वाक़ई कदीमी दरबार शादानी में हिंदुओं के सदगुरु राम के जन्मदिन की तक़रीबात समेत दीगर मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए हिंदू यात्रियों का जत्था वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुँच गया। तफसील जानिए वकास भट्टी की रिपोर्ट में।
भारत की 12 रियासतों से आए हुए हिंदू यात्रियों का मतरूका वफ़द इमलाक बोर्ड के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। मजहबी रसूमात की मरकजी तकरीब 7 जनवरी को हयात पताफी मीरपुर मथेलो में होगी। हिंदू यात्री 13 जनवरी तक सिंध में क़याम के दौरान दरबार हयात पताफी मीरपुर मथेलो, योग माता मंदिर, घोड़की, पन्नू आट्रेल और सक्कर में मौजूद कदीमी साधु बेला मंदिर और दीगर मजहबी मकामात का दौरा करेंगे और अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। भारत से आए हुए हिंदू यात्री वाघा से मतरूका वफ़द इमलाक बोर्ड की गाड़ियों में सिंध रवाना हो गए। वाघा बॉर्डर पर गुफ्तगू करते हुए एडिशनल सेक्रेटरी सैफुल्लाह खोकर ने कहा कि मतरूका वफ़द इमलाक बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम फुल प्रूफ सिक्योरिटी, मेडिकल समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंडिया से आए यात्रियों ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों और मतरूका वफ़द इमलाक बोर्ड की जानिब से बेहतरीन इंतजामात करने पर शुक्रगुजार हैं। तमाम तर सहूलियात हैं वो मुकम्मल मुफ्त हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट की सहूलत है। यहाँ वाघा से लेके वाघा तक एक अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाएगी। इसमें हम हुकूमत पंजाब के मशकूर हैं, हुकूमत सिंध के बिलखुसूस मशकूर हैं। पूरी सिक्योरिटी रहती है, खाने पीने का इंतज़ाम भी बहुत ही अच्छा रहता है। हिंदू यात्री 14 जनवरी को ननकाना साहब पहुंचेंगे, जहां वो एक रोज़ा क़याम के बाद 15 जनवरी को वाघा के रास्ते वापस भारत जाएंगे। मुर्ताज़ भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान के इलाके मशक़े में मोटरवे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बिजली की फराहमी, तंग डैम और दीगर तरक्याती मनसूबों पर काम तेजी से जारी है। तरक्की के सफर में पाक फौज अवाम के लिए बेहतरीन सहूलियात मुहैया कर रही है। पाक फौज की जानिब से M8 कैंप का दौरा किया गया और बलूचिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करने वाले मजदूरों की हौसला अफजाई की गई। पाक फौज ने तरक्याती कामों में मसरूफ मजदूरों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद भी किया। स्पेशल कम्युनिकेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ताउस में फ्रीलांसिंग मरकज़ कायम किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल शाहीन बेग ने कहा है कि फ्रीलांसिंग मरकज़ के जरिए नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। SCO और जो है आर्मी की तरफ से फ्री लॉन्सिंग मिनी हब के इफ्तिताह से और इसके इजरा से इंस्टॉल से यहाँ के न सिर्फ स्कूल के मसाइल हल हुए हैं, बल्कि स्कूल के बाद भी हमारे सराउंडिंग से जो भी लोग फ्री लॉन्सिंग से फ़ायदा लेना चाहे तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। SCO के जो है हुकाम बाला और आर्मी के जो हम शुक्रगुजार हैं। खेलों की सनत के फ़रोग में अहम पेशरफ्त। SIFC की सहूलतकारी और हुकूमती काफिजों की बदौलत खेलों की सनत को आलमी सतह पर पजीराई हासिल हुई है। CPEC के तहत न सिर्फ पाक चीन तिजारती ताल्लुकात मजबूत हुए, बल्कि स्पोर्ट्स गुड्स की बरामदात में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी माहिरीन ने सनत की काविशों की बदौलत फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल की मसनूआत आलमी सतह पर मकबूल हुई। चीन में खेलों के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मसनूआत की मांग में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब चीन की जदीद टेक्नोलॉजी और तिजारती नेटवर्क पाकिस्तान की स्पोर्ट्स गुड्स की सनत में इनकलाब का बायस बनी। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मसनूआत की चीन को बरामदात में 6.68% इजाफा हुआ, जबकि साल 2024 में $10.7 मिलियन की बरामदात हुई हैं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने तलबा तालिबात की सहूलत के लिए सरमाई तातीलात के दौरान सरकारी स्कूलों में विंटर कैंप्स लगाए हैं। विंटर कैंप्स तलबा की पढ़ाई में फायदेमंद साबित हो रहे हैं। तफसील बता रही हैं शाहीन सफ्तर। गिलगित बल्तिस्तान के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सतह के सरकारी तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए विंटर कैंप्स लगाए गए हैं। इलाके में सर्दी की शिद्दत और तालीमी इदारों में छुट्टियों के बावजूद विंटर कैंप्स में हजारों तलबा और तालिबात मुस्तफीद हो रहे हैं। विंटर कैंप्स इस्टेब्लिश कर चुके हैं और इस वक्त बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तैयारियां जारी हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले एग्जाम में ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। विंटर कैंप्स में रेगुलर असातिज़ा और टेक फेलोज तालीमी सेशन में तलबा की भरपूर रहनुमाई कर रहे हैं, जिससे तलबा को बोर्ड के इम्तिहानात की तैयारी में भरपूर मदद मिल रही है। बहुत अच्छी क्लासेस हुई और हमारे आगे पेपर्स, इसीलिए हमारी तैयारी हुई इन विंटर कैंप्स में पेपर्स के लिए। जो विंटर कैंप्स है इनसे हमें बहुत फ़ायदा हासिल होता है। यहाँ से हमें बहुत सी नॉलेज मिल रही है। हम यहाँ रेगुलर बेस पे आते हैं और हमारी जो टीचर्स हैं वो रेगुलर ही आती हैं और हमें पढ़वाती हैं। महकमे तालीमात की जानिब से शदीद सर्दी के पेश नज़र विंटर कैंप्स में तलबा व तालिबात के लिए बेहतरीन हीटिंग का भी बंदोबस्त कर दिया गया है, ताकि वो किसी दुश्वारी के बगैर अपनी तालीमी सरगर्मियों में इजाफा कर सके। विंटर कैंप के इनेकाद से सरकारी इदारों में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात को अपनी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर करने में आसानी होगी। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, गिलगित।
ناظرین، بلوچستان کا بیشتر حصہ ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔ شمالی اضلاع میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد۔ بلوچستان میں موسم اب مزید سرد ہو گیا ہے۔ -10.7 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ زیارت سب سے سرد رہا۔ زیارت میں 12 ملی میٹر بارش بھی ہوئی، تاہم بلوچستان میں دسمبر اور جنوری میں بارش اور برف باری کا اسپیل توقع سے کم ہے۔ کلات میں کم سے کم ٹیمپریچر -8.5، کوئٹہ -7.5، پشین -5، مسلم باغ -4، چمن -2، یوب -1، جبکہ دال بندین اور پنجگور میں کم سے کم درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ میٹ آفس کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں شمال کے پہاڑی علاقوں میں موسم انتہائی سرد، جبکہ بیشتر علاقوں میں سرد اور خشک رہے گا۔ جنوب کے علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔